Good morning, everyone. Up to now, we have discussed about the sexual reproduction in the flowering plant. In the first chapter, we have discussed about the reproduction in animals. That is how many types of reproduction are present in the earth. Now, in the second chapter, we discussed about the reproduction in sexual plants. Sexual reproduction is flowering plants. Flowering plants में sexual reproduction के बारे में पढ़ा. Now, it is our third chapter, that is the human reproduction. Now, we are going to start our third chapter, that is the human reproduction, means sexual reproduction in humans. कि ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एलॉन्ग विद दैट क्या क्या प्रोसेस होती हैं टू द डिलीवरी ऑफ ए बेबी. वहाँ तक की सारी डिटेल्स हम इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन humans. If we are going to talk about the sexual reproduction in humans, then it is involves few stages. That is, the first stage is the gametogenesis, formation of male gametes in males and female, formation of sperms in male and ovum in the female. After that, the second is the insemination, that is transfer of male gamete to the female gamete. After that, fertilization, fusion of male and female gamete to form the zygote, and after the formation of blastocyst and its development and its attachment to the uterine wall, that is the gestation, and then embryonic for the implantation, embryonic development, gestation and the delivery of the baby, parturition. ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है, ये कुछ पॉइंट्स में डिवाइडेड है. पहला जिसमें आता है गैमेटोजेनेसिस, मींस formation of gametes, sperms in the male and ovum in the female. Sperm is known as male gamete and ovum is known as the female gamete. So gametogenesis is the formation of these gametes. After the formation of the gamete के फॉर्म होने के बाद मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना, that is the insemination, transfer of male gamete to the female gamete. After the insemination, there is the process known as fertilization, the fusion of male and female gamete to form the zygote. जो फर्टिलाइज के बाद क्या होगा, जब इंसेमिनेशन के बाद क्या प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन का, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. एंड आफ्टर दैट इट इज फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल. जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, फिर जाइगोट का जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा, उसका डेवलपमेंट, उसका फॉर्मेशन और उसका अटैचमेंट यूट्राइन वॉल पे अटैचमेंट, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन. आफ्टर दैट गेस्टेशन मींस embryonic development, that is gestation, and the delivery of the baby, that is parturition. The last stage of the sexual reproduction in humans, that is the parturition, delivery of the young one or young baby. So after starting, or we should know the point that it is done after the maturity age, puberty age. The sexual reproduction in humans is only done after its maturity or puberty age. जो sexual reproduction humans में होता है, वो मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो भी हों, उनके मैच्योरिटी या प्यूबर्टी गेन करने के बाद ही वो कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं. बट इंस्टेड ऑफ दैट, उसके साथ ही वी शुड नो दैट in male organisms formation of sperm is throughout their life, but in female organisms formation of ovum ceases after 40 to 45 years. We should know one point, हमें एक पॉइंट जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि मैच्योरिटी के बाद ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म होती है, बट along with that जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन मेल्स में वो थ्रू आउट देयर लाइफ, उनके पूरे जीवन भर उनके अंदर मेल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. बट इनसाइड द फीमेल ऑर्गन्स के अंदर आफ्टर 40 टू 45 इयर्स, 40 से 45 साल के बाद ओवम फॉर्मेशन से ओवम का बनना बंद हो जाता है. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. की जो हमारा पहला है, अगर हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, तो इसमें आता है क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस
topic, that is the male reproductive system, with the help of these diagrams. इस diagrams के थ्रू हम अपने इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं. So male reproductive system is located in the pelvis region outside of the body. जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन ऑफ द बॉडी मीन्स कमर के नीचे का हिस्सा पेल्विस रीजन के नाम से जाना जाता है. बैक के नीचे का हिस्सा पेल्विस रीजन के नाम से आता है. और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में ही पाया जाता है, आउटसाइड द बॉडी के बाहर होता है, वो बॉडी के अंदर नहीं होता है. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द मेल ऑर्गेनिज्म. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में पाया जाता है, वो बॉडी के बाहर होता है. along with that it includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia. और जो ये इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, इसके पास होते हैं ए पेयर ऑफ टेस्टीज. इसके पास एक पेयर टेस्टीज के होते हैं. ए पेयर ऑफ टेस्टीज उसके साथ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, कुछ लाइन्स होती हैं और सम ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी within a pouch called scrotum. You can see that the testes are present in outside the subabdominal cavity within a pouch. टेस्टीज होती हैं बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं एक पाउच में which is known as scrotum. स्क्रोटम वो आउटर कवरिंग है टेस्टीज का, और टेस्टीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होती हैं. एंड द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. और ये बाहर क्यों होती हैं, जो टेस्टीज ये बाहर क्यों होती हैं? स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम टेस्टीज को बाहर कवर करके रखता है. किस लिए? क्योंकि स्क्रोटम को स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, टेस्टीज को स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. और इसीलिए ये बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि हमारा इंटरनल ऑर्गन, हमारा बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमन बॉडी एवरेज बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन का, तो 37 डिग्री सेल्सियस उसको चाहिए नहीं होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के, इसीलिए वो इन आउटसाइड द बॉडी पाया जाता है. तो और 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इसीलिए टेस्टीज जो होती हैं वो स्क्रोटम में होते हुए स्क्रोटम थ्रू बाहर होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाई जाती हैं. In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter. Adult में जो testis होती हैं उनकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर से लेके और width 2 to 3 सेंटीमीटर तक पाई जाती है. एडल्ट में टेस्टीज होते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ उनकी लंबाई होती है, और जो विड्थ होती है उनकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. उसी के साथ साथ टेस्टीज इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग. ईच टेस्टीज हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. जो टेस्टीज होती हैं वो बाहर से उनके पास कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, वो एक डेंस कवरिंग से ढकी हुई होती हैं, पूरा एक मोटी परत से ढकी हुई होती हैं. और तो और उनके साथ हर एक टेस्टी में नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं विच इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. जो टेस्टीज होती हैं उनके ये एक आउटर कवरिंग से ढकी होती हैं, और इनके टेस्टीज के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, 250 स्मॉल स्पेसेस पाए जाते हैं विच इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं. ईच लोब्यूल contains 1 to 3 highly seminiferous tubule in which sperms are produced. और जो ये लोब्यूल होता है उसके हर एक लोब्यूल के पास 2 से 3
1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ये जो टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के पास ईच इन एवरी हर एक लोब्यूल के पास 1 से 3 से मोस्टली कॉइल्ड फॉर्म में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जहां स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन seminiferous tubules which is found in the testicular lobules in much more coiled form, बहुत ही coiled form में पाए जाते हैं और हर एक testicular lobule में वो 2 से 3 नंबर में पाए जाते हैं। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell called male germ cell, that is spermatogonia, and Sertoli cells। और जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ये आप यहाँ पे एक सेक्शनल व्यू मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शनल व्यू यहाँ दिख रहा है। उसके पास क्या होता है, उसके अंदर की लाइनिंग पे 2 सेल्स होते हैं। अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके पास 2 सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज द स्पर्मेटोगोनिया मेल विच इज आल्सो नोन एज मेल जर्म सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर लाइनिंग पे 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द मेल जर्म सेल which is also known as spermatogonia and the Sertoli cell, and the second one is the Sertoli cell. The male germ cells undergo meiotic division finally leading to sperm formation, while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो मेल जर्म सेल होता है वो फर्दर डिवीजन मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। मेल जर्म सेल जो होते हैं मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड सर्टोली सेल परफॉर्म द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। और जो सर्टोली सेल्स होते हैं वे जो स्पर्म्स फॉर्म होंगे उनके नरिशमेंट का रोल प्ले करते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। और जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का रीजन होता है उसके पास इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं और वो क्या बियर करते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं which is also known as लेडिक सेल। ये जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं इन्हें हम लेडिक सेल के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेडिक सेल। लेडिक सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। और ये जो लेडिक सेल होते हैं, जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं विच इज नोन एज एंड्रोजन। एंड्रोजन एक हार्मोन है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है और ये लेडिक सेल्स है ये एंड्रोजन का ही फॉर्मेशन करते हैं, उसका सिंथेसिस करते हैं और उसको रिलीज करते हैं। और ये टेस्टिकुलर हार्मोन है which is released and synthesized and secreted by interstitial cell और लेडिक सेल। जो एंड्रोजन हार्मोन है वो लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स द्वारा बनाया जाता है और उन्हीं द्वारा रिलीज किया जाता है। अदर immunological component cells are also present. The male sex accessory ducts include retitestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens। जो मेल का सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं उनके पास मेनली 4 चीजें होती हैं, रेटिटिस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडेमिस एंड वासा डिफरेंसेस। 4 चीजें मिलके मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स का फॉर्मेशन करती है व्हिच इज नोन एज रेटिटिस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडेमिस एंड वास डिफरेंसेस। दिस इज नोन एज वास डिफरेंसेस। These 4 components constitute the male accessory duct। ये 4 components जो होते हैं वो male accessory duct का फॉर्मेशन करते हैं। The seminiferous tubule of the testes open into the vas efferentia through retitestis। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का होते हैं वो टेस्टिस में वो कहाँ खुलते हैं, वासा इफ्रेंशिया में खुलते हैं, रेटिटेस्टिस से होते हुए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में पाए जाते हैं। वो रेटिटेस्टिस से होते हुए वासा इफ्रेंशिया में ओपन होते हैं
वासा इफ्रेंशिया में खुलते हैं एंड द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडेमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टी। और वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ के वो कहाँ ओपन होता है, वो एपिडेमिस में ओपन होता है, जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे, टेस्टिस के अपर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जाता है। क्या होता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस में पाए जाते हैं वो रेटिक्यूलेटिस से होते हुए वासा इफ्रेंशिया में ओपन होते हैं। वासा इफ्रेंशिया एपिडेमिस में जाकर ओपन होता है और एपिडेमिस कहाँ पाया जाता है, ऑन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के पोस्टीरियर रीजन में वासा इफ्रेंशिया पाया जाता है। The epidermis leads to the vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। और वही जो एपिडेमिस है ये कहाँ खुलता है, ये वास डिफरेंस से होते हुए एब्डोमेन और लूप्स को होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलता है। और जो एपिडेमिस है ये एब्डोमिनल लूप फॉर्म वास डिफरेंसेस से होते हुए एब्डोमिनल से होते हुए लूप का फॉर्मेशन करता है। लूप्स के फॉर्म में ये जाके हमारी यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। ये क्या हुआ, रेटिक्यूलेटिस सेमीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिक्यूलेटिस में, फिर रेटिक्यूलेटिस से वासा इफ्रेंशिया में, फिर एपिडेमिस में, फिर एपिडेमिस के होते हुए वास डिफरेंसेस में, और फिर वास डिफरेंसेस से होते हुए एब्डोमेन में लूप्स का फॉर्मेशन करके वो जो ट्यूब होती है वो हमारी एक्सिस डक्ट होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन करता है। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct। और फिर ये क्या करता है, ये जो एक डक्ट का फॉर्मेशन करता है which is known as seminal vesicle। ये seminal vesicle नाम के एक डक्ट का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल वो फिर कहाँ जाके खुलता है, वो इजाकुलेटरी डक्ट में जाके ओपन होता है। सेमिनल वेसिकल का फॉर्मेशन करने के बाद एपिडेमिस से होते हुए जब वो सेमिनल यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा, फिर वही यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए एक डक्ट में जाके ओपन करता है इनटू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जाके एक डक्ट में ओपन करता है और वहीं से वो एक और फिर वो इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म करता है। इजैकुलेटरी डक्ट का यूरेथ्रा से इजैकुलेटरी डक्ट। These ducts store and transport the sperm from the testes to the outside through urethra। और यही डक्ट से होते हुए ये डक्ट क्या करता है, ये स्पर्म को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है टेस्टिस से बॉडी के बाहर। और ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से होते हुए जब यहाँ आके स्टोर हुआ, इजैकुलेटरी डक्ट में आके स्टोर हुआ, ये डक्ट उसको स्टोर करके रखता है और स्टोर करके रखने के साथ ही साथ ये ट्रांसफर करता है यूरेथ्रा से जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन टेस्टिस में हुआ वो इस यहाँ तक आए और यहाँ पे वो स्टोर हो गए। स्टोर के बाद ये यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी के बाहर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, बॉडी के बाहर चले जाते हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस। और जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है और पेनिस के थ्रू होते हुए वो बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग, बाहर एक ओपनिंग पे आता है और उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस के थ्रू वो बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग से होते हुए वो बॉडी से बाहर आता है। सो एंड आफ्टर दैट द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो पेनिस होता है वो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो कि बना होता है एक कुछ स्पेशल टिश्यूज से बना होता है विच हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जो ये पेनिस होता है कुछ स्पेशल टिश्यूज से बना होता है, इसका फॉर्मेशन कुछ सब स्पेशल टिश्यूज से होता है फॉर द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, ताकि इंसेमिनेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन प्रोसेस पेनिस कैन परफॉर्म द इरेक्शन प्रोसेस। इंसेमिनेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग पेनिस के इरेक्शन के लिए पेनिस का फॉर्मेशन कुछ स्पेशल टिश्यूज से होता है। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस
इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन। और जो पेनिस का इनलार्ज पोर्शन होता है, आगे का पोर्शन होता है, उसे हम, जो बड़ा पोर्शन होता है पेनिस का आगे का, उसे हम ग्लैंड पेनिस के नाम से जानते हैं। एंड इट इज कवर्ड विद ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन विच इज नोन एज फोरस्किन। और वो एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है जिसे हम फोरस्किन के नाम से जानते हैं। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, ए प्रोस्टेट एंड ए पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो मेल के पास एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल दो पेयर होते हैं ना, एक पेयर सेमिनल वेसिकल का, एक पेयर प्रोस्टेट का और एक पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। ये तीन मेन ग्लैंड्स हैं जो पेयर में होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, विच इज ऑल्सो नोन एज मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। और जो ये ग्लैंड्स होते हैं ये सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं। ये ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। ये सेमिनल प्लाज्मा को बनाते हैं जो कि फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम में रिच होता है। जो क्या बियर करता है? वो बना होता है किस किस चीज़ से? फ्रुक्टोज से, कैल्शियम से और कुछ एंजाइम से। द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, वो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो by this diagram we have studied how sperms and are formed and get transferred from the body out of the body। हमने इस डायग्राम के थ्रू पढ़ा कि स्पर्म कैसे फॉर्म होता है और कैसे वो बॉडी के बाहर ट्रांसफर किया जाता है। फर्स्टली स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है? स्पर्म फॉर्म्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मेटोगोनी होता है जिससे ऑल्सो मेल जर्म सेल, उससे स्पर्म फॉर्म्स होते हैं। और सर्टुली सेल जो पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में उसके नरिशमेंट का काम करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? टेस्टिस में पाए जाते हैं। टेस्टिस में जहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो फिर उसके बाद स्पर्म्स कहाँ भेजे जाएंगे? टेस्टिस में। उसके बाद वॉसा इफ्रेंसिया में, फिर इपिडिमिस के थ्रू वो वॉल्स डिफरेंस में आते हैं और फिर वॉल्स डिफरेंस में आने के बाद एक लूप को फॉर्म करके एब्डोमेन से होते हुए वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू आते हैं। वहां पे वो एक सेमिनल वेसिकल का फॉर्मेशन करके यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ आते हैं? यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आउट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और यूरेथ्रा जहां ओपन करता है व्हिच इज नोन एज यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रा कहाँ ओपन करता है? यूरेथ्रल मिएटस में ओपन करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना कि कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और स्पर्म का फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ फॉर्म, वेयर द स्पर्म फॉर्म्स, स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, और अलॉन्ग विद दैट we have studied the transfer of sperm from testes out to outside the body। और उसके साथ हमने ये भी जाना कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है वो किस किस डक्ट से होते हुए बॉडी के बाहर आता है, रिलीज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।